Hello students and welcome back again to our video tutorial. And today in this lecture, we are going to continue our bacterial infection. In previous lecture, I have told you about certain bacterial disease like typhoid, pneumonia. Then I told you about bacterial dysentery, which we call shigellosis. Then I told you about plague. Today in this lecture, we are going to discuss about diphtheria. Then we will be learning about tuberculosis. Then I will be telling you little bit about tetanus, leprosy, cholera, scarlet fever, botulism, which is food poisoning, and whooping cough. So this lecture would be about the commonly occurring bacterial infection in human. As I told you, in our NCERT they have only mentioned about 5. Out of that 4 we have covered in part 1. So starting with the next bacterial disease, and that bacterial disease which we are going to discuss is diphtheria. So diphtheria is caused by a gram-positive bacteria, and name of bacteria is Corynebacterium diphtheriae. The causative agent of diphtheria is a gram-positive Corynebacterium diphtheriae. The mode of transmission of this disease is by droplet method. Mode of transmission is by droplet method. Transmission is by coughing and sneezing, to be very simple. Droplet method. The next thing which we usually discuss in studying a disease is the incubation period. The incubation period of this bacteria, it is usually from half a day to 5 days. So I will mention here from 12 hours to 5 days this bacteria normally take to cause pathogenicity. Now coming on the pathogenicity part, that what this bacteria do after entering in our body and what are the signs and symptoms of diphtheria. See, the first thing which you will remember, that this bacteria first affect your upper respiratory tract. The first thing, there are other signs as well, other symptoms as well which has been felt, but major symptom is infection of upper respiratory tract. This bacteria after infection, when it is surviving in our body, it start releasing certain exotoxin, and those exotoxin causes epithelial necrosis. So this bacteria after affecting our respiratory tract releases certain exotoxin. This statement is very important, that which generally they ask you, diphtheria release what type of toxin. Remember, that's a exotoxin. And what this exotoxin do? This exotoxin result in the damage of respiratory epithelium, which we call epithelial necrosis. So when pathogenicity start, this bacteria release certain exotoxin, and those exotoxin result in epithelial necrosis. What are the signs and symptoms? Initial sign and symptom of this disease is characterized by mild fever. Patient would be having a mild fever. Then patient would be having some sort of cough. The important one I will be discussing as well. There is a condition which we call lassitude, or lassitude is a condition when there is physical and mental imbalance. When patient is feeling unhealthy and there is some disturbance in physical or mental state, we call that lassitude. So lassitude is physical and mental imbalance. Physical and mental imbalance. Then the patient, कफ की जगह आपने इसको एक स्पेसिफिक वर्ड और लिख लो जो जनरली यूज किया जाता है. अब पेन इन द थ्रोट, वी कॉल डेट sore throat. तो mild fever, sore throat, lassitude. Then there is mild headache as well. Mild headache. And the fifth symptom which is generally observed
is a state of being uncomfortable. We call that malaise. Malaise stand for a state of uncomfortableness. A state of being uncomfortable is malaise. So initial sign and symptom is that the bacteria release certain exotoxin. Exotoxin result in epithelial necrosis. Epithelial necrosis is followed by mild fever, sore throat, lassitude, mild headache and malaise. If untreated or the disease is going to progress, the bacteria start releasing the epithelial cell, the damaged cell, they start releasing a gray color substance, and that make the complete mucosa grayish. So when you go to doctor, one more thing I should mention here, diphtheria is more common, it is more common in children below the age of 5 years. Reason being, they are having lesser immunity, more common in children below the age of 5 years. Sometimes it can also occur after the age of 60 years as well, and the reason is same, less immunity. तो एक छोटा बच्चा है, उसको ना गले में दर्द हो रहा है एंड ही इज क्राइंग, साथ में उसको टाइम टू टाइम फीवर भी आ रहा है, डॉक्टर के पास लेके गए एंड व्हाट डॉक्टर इज डूइंग, ही इज वाइड ओपनिंग हिज माउथ एंड ट्राइंग टू चेक द म्यूकोजा ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यूजिंग अ टॉर्च. तो अगर वो म्यूकोजा ग्रेइश हो गया है तो डेट इज श्योर कि उसको डिप्थीरिया हो गया. तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, इफ अनट्रीटेड, दीज आर द फर्स्ट लाइन साइन एंड सिम्टम. इफ अनट्रीटेड, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, उसी के बाद आप लिखेंगे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम releases a grayish substance. तो अगर जनरली जो साइन एंड सिम्टम में पूछा जाता है, दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट साइन एंड सिम्टम ऑफ डिप्थीरिया, अ ग्रेइश म्यूकोजा ऑफ रेस्पिरेटरी एपिथेलियम. आंसर डिप्थीरिया देना है. जब भी कभी ग्रेइश म्यूकोजा ऑफ रेस्पिरेटरी एपिथेलियम हो जाएगा, जब भी कभी ग्रेइश म्यूकोजा ऑफ रेस्पिरेटरी एपिथेलियम दिया है, तो आप समझ जाना वो डिप्थीरिया के बारे में बात कर रहा है. तो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम रिलीज ए ग्रेइश सब्सटेंस व्हिच रिजल्ट इन ग्रेइश कवरिंग और कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, व्हिच रिजल्ट इन ग्रेइश कवरिंग ऑफ म्यूकोजा इन रेस्पिरेटरी एपिथेलियम. इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, दैट वुड रिजल्ट इन चॉकिंग ऑफ थ्रोट, चॉकिंग ऑफ थ्रोट, और जब चॉकिंग ऑफ थ्रोट होना शुरू हो जाएगा तो देयर वुड बी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. तो पेन इन द थ्रोट के साथ साथ अगर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी आ रहा है और जब वाइड ओपन करते हैं माउथ को, तो उससे पता चलता है कि भाई ग्रे ग्रे हो गया है पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो समझ जाना कि डिप्थीरिया हुआ है. तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया इज कॉजेटिव एजेंट, जनरली वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन. ड्रॉपलेट मेथड इज मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, अ शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड. Exotoxin result in epithelial necrosis which result in first line of sign and symptom. If untreated, अगर इसी टाइम एंटीबायोटिक ले लिया तो हो सकता है ठीक हो जाए, एंटीबैक्टीरियल ड्रग लो. लेट्स से कोई पेनिसिलिन खा रहा था, उसको पहले से कुछ प्रॉब्लम था पेशेंट को, बच्चे का पहले से ही पेनिसिलिन या एरिथ्रोमाइसिन का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो यहीं से सिम्टम चले जाएंगे. और अगर ट्रीटमेंट नहीं था, अनट्रीटेड रहा, तो ग्रेइश म्यूकोजा हो जाएगा और ब्रीदिंग प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी. ठीक है बेटा. नाउ next we are going to discuss how it has been diagnosed. Diagnostic test diagnosed by diagnostic test for diphtheria is known as Chick test. देखो डिप्थीरिया के साथ ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रिलेटेड है. एक बहुत फेमस बायोलॉजिस्ट होते हैं, उनका नाम होता है एमिल वॉन फिशर. इनके बारे में शायद थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी होगा, याद है वो लोकेंड की हाइपोथेसिस वाले, राइट. तो इन्होंने क्या किया, ये ना एक 4 साल की बच्ची का ट्रीटमेंट कर रहे थे. 4 साल की बच्ची को डिप्थीरिया था, तब तक डिप्थीरिया का ट्रीटमेंट वगैरह नहीं आया था कोई. तो उन्होंने उस 4 साल की बच्ची का सैंपल लिया और उसको शिप के अंदर इंट्रोड्यूस कर लिया, और शिप से जो भी एंटीबॉडी बने फिर उठा के वो बच्ची को दे दिया.
और बच्चे ठीक होनी शुरू हो गई। तो वहाँ से डिस्कवरी हुई थी पैसिव इम्यूनाइजेशन की। तो जब हम पैसिव इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, जो आपको इम्यून सिस्टम में मैं पढ़ाऊंगा कि अगर आपके बॉडी के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट किए जाए तो उसको पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन की डिस्कवरी कहाँ से हुई थी? आंसर वुड बी फ्रॉम द डिजीज डिप्थीरिया। ठीक है बेटा। तो चिक टेस्ट में भी एक माइल्ड फॉर्म ऑफ पैथोजन एंटर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वांट टू कंफर्म इट, अभी इतने साइन एंड सिम्टम नहीं आ रहे, ग्रेइश म्यूकोसा नहीं हुआ है, एंड आई एम गोइंग फॉर कंफर्मेटरी टेस्ट। तो फॉर एग्जाम्पल इन दैट पर्टिकुलर एरिया एक थोड़ा सा माइल्ड फॉर्म ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया दिया, और आफ्टर 12 आवर 18 आवर 24 आवर अगर यहाँ पे रेड रैशेज आ जाते हैं, इसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव है। तो एक माइल्ड फॉर्म ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम दिया जाता है, और उस टेस्ट के लिए वर्ड यूज करते हैं चिक टेस्ट। देन कमिंग ऑन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो प्रिकॉशन की बात करते हैं। प्रिकॉशन में आपके पास वैक्सीन अवेलेबल है जिसको बोलते हैं डीपीटी। डीपीटी स्टैंड फॉर डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। एक ट्रिपलेट वैक्सीन होती है। जो डीपीटी का वैक्सीन दिया जाता है वो जनरली विद इन 6 मंथ, उसके ना अलग अलग डोज होते हैं। फर्स्ट डोज विद इन 6 मंथ ऑफ बर्थ दे दो, उसके बाद 3 अलग अलग डोज दो 4 वीक के गैप के बाद, तो हर 1 महीने बाद एक डोज देना शुरू कर दो। 3 मोर डोज आफ्टर अ गैप ऑफ 1 मंथ, राइट, ऑफ 4 वीक। और जनरली इसका जो बूस्टर डोज दिया जाता है वो दिया जाता है एट द एज ऑफ 1.5 ईयर्स। तो पहला तो प्रिकॉशन यही होगा ट्रीटमेंट में कि भाई डिप्थीरिया होने ही मत दो, बचपन में डिप्थीरिया का वैक्सीनेशन करा लो, तो जब भी ये इन्फेक्शन होगा तो शायद प्रिवेंशन हो जाए। और अगर हो गया है तो आपके पास क्या क्या पॉसिबल मेथड है? फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ एंटी डिप्थीरियल टॉक्सिन। एंटी डिप्थीरियल टॉक्सिन जनरली एडल्ट्स में इफेक्टिव नहीं होता है। एंटी डिप्थीरियल टॉक्सिन में वही आप परफॉर्म्ड एंटीबॉडी दे रहे हैं, या फिर आप उसको ट्रीट कर सकते हैं बाय पेनिसिलिन, और यू कैन ट्रीट इट बाय इरिथ्रोमाइसिन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर इन्फेक्शन ज्यादा है तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ ग्रेइश म्यूकोजल मेम्ब्रेन भी हो जाता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड मेम्ब्रेन। तो दिस इज हाउ वी ट्रीट डिप्थीरिया। तो बच्चे ये हो गया डिप्थीरिया के बारे में। एक क्विक रिवीजन में कि डिप्थीरिया अगेन एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी करेगा, ड्रॉपलेट मेथड से ट्रांसमिशन होगा, छोटा इंक्यूबेशन पीरियड होता है, एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है उसका ग्रेइश म्यूकोजा। चिक टेस्ट से उसको डायग्नाइज करते हैं। एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स आपके पास है जो ट्रीट करने के लिए, साथ में वैक्सीन भी अवेलेबल है, राइट। नेक्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट डिजीज आपको ना एक और चीज़ बता देता हूँ। कई बार डिप्थीरिया बहुत डेडली हो जाता है, कई बार डिप्थीरिया या कुछ इन्फेक्शन बहुत डेडली हो जाते हैं। एक वर्ड लिखते हैं हम मेडिकल बायोलॉजी में जिसको बोलते हैं लाइसोजेनिक कन्वर्जन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइसोजेनिक कन्वर्जन? लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ लाइसोजेनिक कन्वर्जन। इसका कंसेप्ट ये होता है कि अगर आपको पहले से किसी लाइसोजेनिक वायरस का इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेडली हो सकता है। ये कुछ ऐसा है कि अगर आप क्लासरूम में अकेले बैठे हैं तो आप बहुत ज़्यादा सिंसियर होके बैठे हुए हैं, शरारतें बहुत कम हैं, और अगर आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड साथ में है तो आपकी शरारतें बढ़ जाती है। तो कोई भी बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी बढ़ जाती है अगर बॉडी को ऑलरेडी कोई लाइसोजेनिक वायरस का इन्फेक्शन हो। ये जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी का एक ऐसा ही नॉटी फ्रेंड होता है। तो अगर बच्चे को उस वायरस का इन्फेक्शन है तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी से डेथ भी हो जाता है। डिप्थीरिया कैन रिजल्ट इन डेथ, राइट। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, लाइसोजेनिक कन्वर्जन का मतलब होता है बैक्टीरियल पैथोजन become more deadly
become more infectious, more deadly in presence of a lysogenic virus. And I will be giving you few examples here. The first example which we are going to discuss is infection of Corynebacterium diphtheria. और Corynebacterium diphtheria का जो लाइसोजेनिक वायरस फ्रेंड होता है उसका नाम होता है फेज बीटा। तो अगर पेशेंट को बीटा फेज वायरस का इन्फेक्शन है तो Corynebacterium diphtheria का इन्फेक्शन और ज़्यादा डेडली हो सकता है। या फिर हम सेकंड केस डिस्कस करें, हमने एक पढ़ा था शिजेला डिसेंट्री, शिजेला डाइसेंटेरी, रिमेंबर इन द प्रीवियस लेक्चर। अगर पेशेंट को लैम्बोइड बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन है, यू नो लैम्डा टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज, अगर पेशेंट को लैम्बोइड बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन है तो जो डिसेंट्री है दैट कुड बी वेरी वेरी डेडली, राइट, दैट कैन रिजल्ट इन डेथ एज वेल। और एक और क्लासिकल एग्जाम्पल पढ़ना बेटा विब्रियो कॉलरी का। सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल इज ऑफ विब्रियो कॉलरी। Vibrio cholerae is the causative agent of cholera. Cholera is a kind of loose motion. I will be telling you after 1 or 2 disease. तो Vibrio cholerae के केस में एक फेज वायरस होता है, फेज CTX shy. The name of virus is phage CTX. How you pronounce it? Phi or what? तो अगर फेज CTX phi का इन्फेक्शन है तो Vibrio cholerae ज़्यादा डेडली हो जाता है। अगर लैम्बोइड बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन है तो डिसेंट्री ज़्यादा डेडली हो जाती है, और फेज बीटा फेज का इन्फेक्शन है तो डिप्थेरिया भी ज़्यादा डेडली हो जाता है। तो कई बार ना क्वेश्चन को ऐसे डिज़ाइन कर देते हैं, शायद वो अगर एनसीईआरटी लेवल पे नीट को रखना चाहते तो ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पर जब आप साइड बुक्स वगैरह सॉल्व करोगे या आप अगर डिप्थीरिया पढ़ रहे हो तो दीज इन्फॉर्मेशन आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट डिप्थीरिया। Next we are going to discuss about tuberculosis. The next disease which we are going to discuss is tuberculosis. Tuberculosis is very common nowadays, और आए दिन हम जिक्र करते रहते हैं कि उसको टीबी हो गया, इसको टीबी हो गया, और आप अपने लोअर क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हो टीबी के बारे में कि भाई माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस उसका कॉजेटिव एजेंट होता है। जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी हुआ मैं बता देता हूँ आपको। तो नेक्स्ट इज tuberculosis. We also abbreviate that disease as TB, और इस डिजीज का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं बेटा कॉच डिजीज। इट इज आल्सो नॉन एज कॉच डिजीज। रॉबर्ट कॉच के बारे में बताया था मैं थोड़ा सा आपको। ट्यूबरक्यूलोसिस, कॉलेरा, उनके ऊपर उन्होंने खूब काम किया था, एंथ्रेक्स के ऊपर भी खूब काम किया था उन्होंने। तो ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ पैथोजन बाय रॉबर्ट कॉच इन 1880 आई गेस 1890 सॉरी, तो कॉच डिजीज इज द अदर नेम ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, कुछ कॉच के बारे में बताऊं, रॉबर्ट कॉच के बारे में। रॉबर्ट कॉच के ना कुछ पोस्टुलेट होते हैं। जब हम मेडिसिन पढ़ते हैं तो जो भी आपके बैक्टीरियोलॉजी है उसमें रॉबर्ट कॉच के कुछ पोस्टुलेट होते हैं, तो मैं उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कॉच पोस्टुलेट। तो कॉच पोस्टुलेट वैसे तो बहुत ही सिंपल हैं, पर उन्होंने ये कहा था कि क्या क्या पोस्टुलेट थे मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले फॉर एग्जांपल एक ग्रुप ऑफ पीपल है और वो बीमार हैं, तो उन ग्रुप ऑफ पीपल में कोई ना कोई एजेंट होना चाहिए जो बीमारी कॉज कर रहा है। तो देयर शुड बी ए एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट और पैथोजन जो बीमारी कॉज करता है। तो मेरा जो सैंपल होगा उससे एक पैथोजन आइसोलेट होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट था कि अ पैथोजन, उन्होंने जिक्र नहीं किया था कि ये पैथोजन क्या है इन द इनिशियल, मस्ट बी present in body of infected person, in blood of infected person। ठीक है, जब आप लैब कल्चर करो तो उस ब्लड में से वो पैथोजन आइसोलेट भी होना चाहिए। पैथोजन शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम कल्चर। ये देखो अभी अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो कोई इशू नहीं है इन पोस्टुलेट में, पर जब आप डिजीज पढ़ ही रहे हो तो मैं एक दो बार ना वर्ड यूज़ करूंगा कि ये बैक्टीरिया कोच पोस्टुलेट फॉलो ही नहीं करता है, तो पता होना चाहिए कोच पोस्टुलेट क्या था।
पहला, पेशेंट के अंदर एक पैथोजन होना चाहिए, कल्चर से वो पैथोजन आइसोलेट भी होना चाहिए। जब ये आइसोलेटेड पैथोजन हम किसी हेल्दी पर्सन को देते हैं, अच्छा ये जो पैथोजन है ये हेल्दी पर्सन में नहीं होना चाहिए, सिर्फ पेशेंट में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में 10 बच्चे, 5 बच्चों को खांसी का प्रॉब्लम है, 5 बच्चों को खांसी नहीं है, तो वो जो पैथोजन कफ वाले स्टूडेंट में है वो पैथोजन नॉन कफ वाले स्टूडेंट में नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कोच। तो जब कफ वाले पेशेंट का हमने ब्लड सैंपल लिया तो उनसे वो पैथोजन, पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैथोजन भी आइसोलेट होने चाहिए। थर्ड ये था, ये जो आइसोलेटेड पैथोजन है जब हम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स को देते हैं, इन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स में सेम टाइप ऑफ सिम्टम प्रोड्यूस होने चाहिए, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल में सेम टाइप ऑफ सिम्टम आने चाहिए, और इस इंडिविजुअल से, इस पेशेंट से भी सेम पैथोजन या सेम बैक्टीरिया आइसोलेट होना चाहिए। तो वो सिर्फ ये कोशिश कर रहे थे कि कोई भी डिजीज का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है उसके ऊपर उनका काम था। तो जब रॉबर्ट कोच अपना रिसर्च कर रहे थे वो कल्चरिंग के लिए खूब सारे कल्चर मीडिया यूज़ करते थे, कल्चरिंग के लिए खूब सारे कल्चर मीडिया यूज़ करते थे, जैसे न्यूट्रिएंट अगार मीडियम जिसको कहते हैं। अब बच्चे प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ पैथोजन होते हैं जो ऑब्लिगेटरी इंटरसेलुलर पैरासाइट है, फॉर एग्जाम्पल वायरसेस आर देयर, वो तो लिविंग सेल के बाहर नहीं ग्रो करते, तो वो कल्चर हो ही नहीं पाते थे। तो कोच पोस्टुलेट को वायरस कभी भी फॉलो नहीं करता है। फिर आप लोगों ने पढ़ लिया कि कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो क्या नाम है, ऑब्लिगेटरी इंटरसेलुलर पैरासाइट है, शायद आपके दिमाग में एक नाम आ भी गया होगा, क्लेमाइडिया वाला। तो जो क्लेमाइडिया का बैक्टीरिया होता है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, वो भी कोच पोस्टुलेट फॉलो नहीं करता है। और मैं आपको बता दूं कि सिफाइलिस का जो बैक्टीरिया है वो भी कोच पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता है। तो क्लेमाइडिया एंड सिफाइलिस दो क्लासिकल एग्जाम्पल थे। अभी एक डिजीज़ पढ़ने वाले हैं लेप्रोसी, लेप्रोसी का बैक्टीरिया भी कोच पोस्टुलेट को नहीं फॉलो करता है। खैर, तो हम शुरू करते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस से। ट्यूबरक्यूलोसिस विच इज ऑल्सो नोन एज टीबी, और अदर नेम ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस इज कोच पोस्टुलेट, नॉट रॉच, just call him Koch, right? May his soul rest in peace. Okay, so first causative agent. The causative agent of tuberculosis is Mycobacterium tuberculosis. अच्छा, एक और चीज़, हम ना ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पढ़ते आ रहे हैं, पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ग्राम स्ट्रेन नहीं देता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया कैन नॉट बी स्ट्रेन्ड बाय ग्राम, जो ग्राम स्ट्रेन्स हैं। रीजन बीइंग इनके अंदर लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको स्ट्रेन करने के लिए हमारे पास ग्राम स्ट्रेन की जगह दूसरा स्ट्रेन यूज होता है, उसको बोलते हैं एसिड फास्ट स्ट्रेन। तो आई विल मेंशन हियर एसिड फास्ट स्ट्रेन is used due to high lipid content. इनके पास लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनके डायग्नोसिस के लिए इनके कैरेक्टराइजेशन के लिए ग्राम स्ट्रेन का यूज़ करके एसिड फास्ट स्ट्रेन यूज़ करते हैं। देन इसका जो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन होगा, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, droplet and aerosol both can result in the transmission of tuberculosis, droplet and aerosol method. ठीक है। incubation period vary करता है, it could be from few weeks, few days to few weeks, let's say 5 days to 1 month, 2 months, let's say 8 weeks, make it 3 months. जनरली जो हम इंक्यूबेशन पीरियड लेते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस का वो 2 वीक से 12 वीक्स होता है। जनरली जो इंक्यूबेशन पीरियड लेते हैं वो 2 वीक से 12 वीक्स होगा। अब आते हैं इसके पैथोजेनिसिटी पर कि भाई ये बैक्टीरिया करता क्या क्या है बॉडी में। तो पैथोजेनिसिटी में फिर से याद रखेंगे कि ये जो बैक्टीरिया है ये एक प्रोटीन रिलीज करता है। द बैक्टीरिया रिलीज अ प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन इज नोन एज ट्यूबरक्यूलिन। दैट बैक्टीरिया रिलीज अ प्रोटीन एंड नेम ऑफ प्रोटीन इज ट्यूबरक्यूलिन, एंड दिस ट्यूबरक्यूलिन इज पैथोजेनिक इन नेचर. So bacteria of TB
it releases a protein which we call tuberculin. The organs which are affected in case of TB, organs affected, you can learn that lungs are affected, lymph nodes are affected. Not only lungs and lymph nodes, even bones and joints, they are also affected. So these are the certain structure of body which are affected by the bacteria. Generally there are two different type of TB. अगर lungs affected है तो उसको बोलते हैं pulmonary TB, और अगर lymph node affected है तो वर्ड यूज करते हैं lymphoid TB, lymphoid organ TB, और लेट्स कॉल दैट lymphoid TB. ठीक है बेटा, वन बाय वन इनके साइन एंड सिम्टम पढ़ लेते हैं. जो पल्मोनरी टीबी होगा, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, देन पेशेंट वुड बी हैविंग कफ, कफ में स्पुटम आएगा एंड स्पुटम विद ब्लड आता है. देयर इज स्पुटम विद ब्लड. थर्ड, अगर थर्ड सिम्टम की बात करें, पेशेंट इज हैविंग फीवर नॉर्मली इन इवनिंग टाइम. आप नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी का थोड़ा बहुत याद हुआ हो आपको, तो जनरली जो भी ये वो केमिकल जो फीवर इंड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं पायरोजेंस आर द मॉलिक्यूल विच इंड्यूस फीवर, और नॉर्मली ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम ही पायरोजेंस रिलीज होते हैं. तो इवनिंग टाइम में फीवर आएगा, नाइट स्वेटिंग रहेगा, नाइट स्वेटिंग, पेशेंट की जो पल्स है वो रैपिड हो जाती है, रैपिड पल्स. देन पेशेंट को होर्सनेस इन थ्रोट होना शुरू हो जाता है, होर्सनेस इन थ्रोट. कुछ और अगर सिम्टम मैं बताऊं आपको, पेन इन चेस्ट रहेगा, देन और उसको ना लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, और एक्सट्रीम फैटीग रहता है, एक्सट्रीम फैटीग. तो अगर पल्मोनरी टीबी के सिम्टम की बात करें, फीवर रहेगा, कफ, स्पुटम विद ब्लड, क्लासिकल. ठीक है, देखो कफ कुड बी प्रोडक्टिव, कुड बी नॉन प्रोडक्टिव एज वेल. नॉन प्रोडक्टिव कफ इज ड्राई कफ, तो कफ कुड बी प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव. इफ इट इज प्रोडक्टिव दे कैन बी ब्लड विद स्पुटम, फैटीग इज देयर, लॉस ऑफ एपेटाइट इज देयर, पेन इन चेस्ट इज देयर, नाइट स्वेटिंग, फीवर इन इवनिंग टाइम, रैपिड पल्स इंपॉर्टेंट, एंड हॉर्सनेस इन थ्रोट. अगर पेशेंट को लिम्फोइड टीबी है तो जो लिम्फ नोड है वो स्वेल कर जाते हैं. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलन लिम्फ नोड. और जनरली कौन से एरिया के लिम्फ नोड स्वेल कर जाते हैं? इन सर्वाइकल एंड सुप्रा क्लेविकुलर एरिया. देखो सर्वाइकल रीजन तो सर्वाइकल वर्टिब्रा वाला क्लियर हो गया, एंड सुप्रा क्लेविकुलर होता है क्लेविकल के ऊपर वाला जो एरिया है. तो जहाँ जो यहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं और जो यहाँ पे लिम्फ नोड्स है वो स्वेल कर जाती हैं, तो पेशेंट को बड़ी प्रॉब्लम होती है. यहाँ पर स्पीकिंग प्रॉब्लम भी आने शुरू हो जाती है बाद में, तो वोकल कॉर्ड इन्फ्लेमेशन इज देयर. होर्सनेस ऑफ थ्रोट में भी वोकल कॉर्ड इन्फ्लेम हो जाती है, तो आवाज़ में लाइक वो होस्ट लाइक आवाज़ तो नहीं आती है एग्जैक्टली, बट ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ वोकल कॉर्ड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आना शुरू हो जाता है. तो दो तरह की टीबी बता दी, पल्मोनरी टीबी क्या होती है और लिम्फोइड टीबी क्या होती है. ठीक है, अब टीबी को डिटेक्ट कैसे करते हैं? डायग्नोसिस ऑफ टीबी. द डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ टीबी इज रेफर्ड एज टू माउंटॉक्स टेस्ट. Diagnostic test of TB is, which color you want to see here? Diagnosis is, पहला याद रखें माउंटॉक्स टेस्ट. माउंटॉक्स टेस्ट का दूसरा नाम होता है बेटा ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट. राइट, और इसी का तीसरा नाम होता है PPD, a purified protein derivative. We also call that purified protein derivative. देखो इस टेस्ट में भी डिप्थीरिया जैसा ही कुछ करते हैं.
पेशेंट को एक ट्यूबरक्लिन का डोज दिया जाएगा और लेट्स से ये रिस्ट के ऊपर डोज दिया गया है। रिमेंबर ये ना वेन्स में नहीं दिया जाता, आर्टरीज में नहीं दिया जाता, तो सब डर्मल डोज दिया जाएगा। सब डर्मल डोज देने के बाद उस पर्टिकुलर एरिया को मार्क कर देंगे और आफ्टर फ्यू आवर्स, जनरली आफ्टर 24 आवर्स चेक करते हैं कि रेडनेस आई है नहीं आई है। तो अगर रैशेज वगैरह आने शुरू हो जाते हैं तो टेस्ट पॉजिटिव है। जितनी दूर तक रैशेज आएंगे उतना ज़्यादा ही इन्फेक्शन है टीबी का, और अगर रैशेज वगैरह नहीं आते तो नेगेटिव टेस्ट है। तो जनरली जैसे डिप्थीरिया का टेस्ट किया था, स्किन के अंदर एक इंट्रा एपिडर्मल फ्लूइड देने के बाद उसमें हमने दिया था डिप्थीरियल टॉक्सिन, इसके अंदर हम देते हैं ट्यूबरक्युलिन टॉक्सिन। तो खैर आप सिर्फ इतना याद रख लें कि भाई डायग्नोसिस के लिए अपने पास माउंटॉक्स टेस्ट होता है, और माउंटॉक्स टेस्ट के दो अलग अलग नाम और हैं। जौन सा उसके अंदर प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से नाम दे दिया, और वो प्रोटीन प्यूरिफाइड होता है उसके हिसाब से नाम दे दिया। फिर बात करते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट ऑफ टीबी के लिए हु विल टेल मी द वर्ल्ड टीबी डे? व्हेन इज वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेटेड? 24th of March. 24th of March is celebrated as World TB Day. कई बार एक बार ना ये क्वेश्चन पूछा गया था, अब तो वो एग्जाम नहीं होता है, पर जिपमर एग्जाम में शायद 2017 में ये क्वेश्चन था, थोड़ा और सा था पर पूछ लिया तो बताना जरूरी बनता है। तो 24th of March it has been celebrated as World TB Day. 24th of March. Then yes, treatment. We are having a vaccine for TB here, and the name of vaccine is Bacillus of Calmette and Guerin. Bacillus of, the name of scientist who discovered it is Calmette and Guerin. तो एक तो टीबी का वैक्सीन है, बहुत इफेक्टिव रहता है। देन इंडिया में टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था 1962 में, और उसके बाद 1970s में आके जब ये वैक्सीन डिस्कवरी हुई तो उसको भी उसमें ऐड कर दिया गया। और अब तो हॉस्पिटल्स में, अलग अलग हॉस्पिटल्स में टीबी के ट्रीटमेंट के लिए प्रोग्राम है। सो टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ट्यूबरक्यूलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम, it was actually started by government of India in the year 1962. Okay, then there are certain medications which has been given to TB patient. जो medicines होती हैं बेटा उसको मैं याद रखता हूँ रिस्पैट के नाम से। तो there are certain first line of medicine and certain second line of medicine कि भाई जितना इन्फेक्शन उसके हिसाब से दे। तो अगर हम medicines की बात करें, which antibiotics are generally used? Rifampicin, isoniazid, the most important one, streptomycin। देखो आइसोनियाजिड देते तो हैं टीबी के ट्रीटमेंट में, पर अगर देखो टीबी इज मोर कॉमन, मोर प्रिविलेंट इन केस, जितने भी टीबी पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं जहाँ से बैक्टीरिया आ सकता है उससे मेल ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं। देन आइसोनियाजिड और IZN इज आल्सो एसोसिएटेड विद द इनफर्टिलिटी केसेस इन मेल। पर देख लो अब आपकी मर्जी है, आपको फर्टाइल रहना है या टीबी के साथ रहना है। टीबी जनरली डायग्नाइज होता है लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में जाके, तब तक तो जो भी उनका फर्टिलिटी वाला काम था, 2 बच्चे 1 बच्चा जितना भी था वो हो चुके होते हैं, तो आइसोनियाजिड दे देते हैं। ठीक है। देन पायरेजिनएमाइड रिस्पैट, पायरेजिनएमाइड एथएम्ब्यूटॉल और रिस्पैट थायोएसिटोजोन। These are the 6 common disease or common medicines which has been given to a TB patient. तो इसमें एक मेडिसिन का जरूर नाम याद रख लेना, आइसोनियाजिड। इसको ना एंटी टीबी ड्रग ही बोलते हैं ज़्यादा। देन आप ना डॉट्स के बारे में सुनते रहते हो। डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट और थेरेपी। डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व
थेरेपीज और ट्रीटमेंट। तो गवर्नमेंट, अच्छा इसमें क्या होता है, आपने एक पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि वो दवाई वगैरह ले रहा है या नहीं ले रहा है, और उसको वो दवाई काम कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर वो जो भी कॉजेटिव एजेंट्स थे उनको छोड़ दिया नहीं छोड़ दिया है। आपके यहाँ पर ना 2 ओल्ड पर्सन है, उनको टीबी हो गया, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दवाई लेके आ रहे हैं, तो शायद एक सर्वे के लिए कुछ लोग आ जाए। तो जब आप मॉनिटर करते हो कि जो पेशेंट है वो दवाई वगैरह ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी। When is World Health Day celebrated, by the way? You are going to be doctors, you should know that. World Health Day अभी लास्ट मंथ ही था, 7th of April। तो जब आप ये डेट लिख ही रहे हो तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, वर्ल्ड हेल्थ डे is celebrated on 7th of April, and there is one more, Red Cross Day। Red क्रॉस डे, पहले तो सुन लो ये दिन होता क्या है। एक बहुत ही रेस्पेक्टेड रिनॉर्ड बायोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट क्या, मैं उनको फिलोसफर कहूँगा, उनका नाम था रेड क्रॉस, अजीब सा नाम था, और उनके बर्थडे के दिन ये मनाया जाता है। इसको मनाने का मेन पर्पज़ ये होता है कि जितने भी ज़रूरतमंद हैं आप उनकी हेल्प करें, और जितने भी ऐसे लोग हैं जो हम सब की हेल्प कर रहे हैं और ये हम सब की हेल्प करते करते इस दुनिया में नहीं रहे, उन सबको श्रद्धांजलि दें। अ डे विच हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन ऑर्डर टू हेल्प द नीडी वन एंड इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट विच एक्चुअली लॉस देयर लाइफ फॉर सेविंग अस, उनके रेस्पेक्ट में एक डे मनाया जाता है, इसको बोलते हैं रेड क्रॉस डे। एंड व्हेन इट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड, it is celebrated on the same day when this lecture is recorded. So today is Red Cross Day, 8th of May. 8th of May is reported as Red Cross Day. Is that clear? So tuberculosis को एक बार क्विक रिवीजन, कॉज डिजीज कहते हैं, ड्रॉपलेट एरिसोल मेथड से होता है, कुछ वीक्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस एसिड फार्ट स्ट्रेन से डायग्नोस किया जाता है। ट्यूबरक्यूलिन टॉक्सिन है जो लंग्स, लिम्फ नोड्स, देन अपने जो जॉइंट्स हैं और जो बोन्स हैं उनको इन्फेक्ट कर देता है। इन्हीं 2 तरह की टीबी होती है, लिम्फोइड टीबी और पल्मोनरी टीबी। डायग्नोसिस मॉन्टॉक्स टेस्ट, ट्रीटमेंट के लिए आपके पास वैक्सीन भी है और आपके पास सर्टेन ड्रग्स भी हैं। एंड वर्ल्ड टीबी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24th of March। ये हो गया बच्चे टीबी के बारे में। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू, तो ये तो हो गई वो डिजीज जिनको थोड़ा डिटेल में हमें जान लिया। फिर थोड़ी और डिजीज हैं जिनके ना हमें सिम्टम और पॉजिटिव एजेंट पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज लेप्रोसी। सीरियसली टाइम फ्लाइज and we surely love to learn all these things if we were in classroom, but I am trying to make this video lecture as much as effective as it would be in classroom. Rest is upon you कि आप इससे कितना सीख पाते हैं। Right, leprosy. Leprosy is also known as Hansen's disease. The other name of leprosy is Hansen's disease. तो जैसे रॉबर्ट कॉच के नाम पे उसको नाम दिया था, ऐसे ही हैंसन साहब के नाम पर लेप्रोसी को नाम दिया गया। ठीक है बेटा। जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, आप ये याद रखना कि ये बहुत ईजिली ट्रांसमिट हो जाती है, और जो ये पहले तो हमें पढ़ना है पैथोजन के बारे में। ये जो पैथोजन है ये स्पेशल इसलिए क्योंकि इसका जो डबलिंग टाइम है, जो रेप्लिकेशन मोड है, वो स्लोवेस्ट है इन ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वन ऑफ द स्लोवेस्ट। तो लेप्रोसी के इन्फेक्शन के सिम्टम ना आपको 20-22 साल के बाद भी आते हैं कई बार। तो पैथोजन ऑफ लेप्रोसी इज माइकोबैक्टीरियम लेप्री। This is one of the most slowly replicating or multiplying bacteria, and what I was telling you, that is having the slowest, or that is having the longest doubling time. Then mode of transmission, जो mode of transmission होता है लेप्रोसी का, it is very infectious,
इन्फेक्शियस, तो आपका जो नेजल डिस्चार्ज है उससे लेप्रोसी का बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो सकता है, आपकी जो कफ है उससे हो सकता है, आपकी जो स्नीज है उससे हो सकता है। तो आई एम टेलिंग यू सर्टेन ड्रॉपलेट मेथड, इवन स्लाइवा एक्सचेंज से भी हो सकता है। Also by aerosol method, even by speaking, that bacteria can be transmitted from an infected person to a healthy person. Even by speaking, this bacteria could be transmitted. जिसका incubation period होगा, incubation period is quite long, and as I was telling you, it could be in years, let's say 5 to 10 years. कई बार तो ना 20 ईयर्स के बाद आपको इन्फेक्शन, आपको साइन एंड सिम्टम आने शुरू होते हैं। देन डायरेक्टली हम आ जाते हैं उसके पैथोजेनिसिटी के ऊपर। पैथोजेनिसिटी में क्या होता है, देखो फीवर और चिल्स के साथ साथ ये जो बैक्टीरिया है ये टॉक्सिन रिलीज करता रहता है। ये बैक्टीरिया मेनली अफेक्ट करता है आपके नर्व्स को, तो नर्व्स जो है वो ठीक हो जाती है और अफेक्टेड पार्ट में पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है। पहला लेप्रोसी का साइन एंड सिम्टम। दूसरा लेप्रोसी के साइन एंड सिम्टम में याद रखेंगे डिफॉर्मिटीज ऑफ टोज एंड नेल्स आने शुरू हो जाती है। तो लेप्रोसी में आपका पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, इफेक्टेड एरियाज में स्किन रैशेज, स्किन इरप्शन, ये तो बहुत कॉमन है, और डिफॉर्मिटीज ऑफ टोज एंड नेल्स हो जाती है, हैंड के नेल्स वाली और टोज के नेल्स वाली। ठीक है, डिफॉर्मिटीज ऑफ टोज एंड नेल्स मैं वर्ड यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो वन बाय वन ना पैथोजेनिसिटी में इसके साइन एंड सिम्टम कर देते हैं। Pathogenicity, the first sign and symptom, the disease is characterized by light color rashes on skin. It is characterized by light color rashes on skin. Second, there would be thickening of nerves, और इस थिकनिंग ऑफ नर्व्स की वजह से पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ द इफेक्टेड एरिया। ठीक है बेटा। देन तीसरा आपको साइन एंड सिम्टम बताया कि इसके अंदर ना आपका डिफॉर्मिटीज of toes and nails is very common, right? Then fever वगैरह आता है, या fever is a sign, it has been reported in a lot of disease। उसके बाद आप याद रखना इरप्शन ऑफ स्किन, जो भी रैशेज वगैरह ना वहाँ से स्किन इरप्ट होनी शुरू हो जाती है। तो इरप्शन ऑफ स्किन along with red rashes, these are also certain symptoms of leprosy। पर I really want you कि आप ये 2-3 ज़रूर याद रखें, यही जनरली किया जाता है। जब माइकोबैक्टीरियम लेप्री पढ़ रहे हो तो आप कैसे भूल सकते हैं इसको, आप नॉर्मल अगार मीडियम में नहीं कल्चर करते। ऐसा कहा जाता है कि भाई जो लेप्रोसी का बैक्टीरिया है वो ह्यूमन में आया डेसिपस से। डेसिपस इज़ द कॉमन नेम ऑफ आर्माडिलो, और जब कल्चरिंग करते हैं तो उसी को पकड़ के लाते हैं, वी आर सेंडिंग इट हिम बैक, कि भाई उसके अंदर देखते हैं सैंपल डाल के कि वो ग्रो कर रहा है बैक्टीरिया नहीं कर रहा है। तो इसमें याद रख लेना, इट डज नॉट फॉलो कोच पोस्टुलेट एंड इट इज कल्चर्ड इन आर्माडिलो, इन द फुट ऑफ आर्माडिलो और डेसिपस। क्लास 11th के स्टूडेंट्स को शायद ये याद रहेगा, ये डिस्कस किया था हमने इन अवर एनिमल किंगडम पार्ट। एनीवेज, देन नेक्स्ट आता है इसका डायग्नोसिस, लेप्रोमिन टेस्ट। डायग्नोसिस इज बाय लेप्रोमिन टेस्ट। ट्रीटमेंट के लिए लेप्रोसी के केस में हम DDS यूज कर लेते हैं, डाईएसाइल डाईअमाइनो सल्फोन। DDS is commonly given to the patient of leprosy, and DDS stands for diacyl diamino sulfone, or diphenyl, not diacyl, it's diphenyl diamino sulfone is the drug which has been given to treat leprosy.
Done up to here. Next, it's what I am doing. Diamino diphenyl सल्फोन, ये फ़ायदा होता है क्लासरूम का, एटलीस्ट करेक्ट तो कर लेते हैं बच्चे। एनीवेज, देन एक दो और बचे हमारे पास। लेट मी टेल यू लिटिल बिट अबाउट टेटनस फर्स्ट, उसके बाद कॉलेरा, और एक दो के नाम और बता दूंगा। आई होप लेक्चर इज नॉट गोइंग वेरी लेंदी, और इफ इट इज गोइंग लेंदी, व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू कंप्लीट ऑल द बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन दिस लेक्चर ओनली। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जनरली 20 मिनट में पढ़ाना चाहिए था। ये 5 डिजीज तो लिखी है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट इज टेटनस, एंड यू ऑल नो अबाउट दिस डिजीज। A gram-positive bacteria, the name is Clostridium tetani. A gram-positive bacteria, pathogen, gram-positive bacteria, Clostridium tetani is the causative agent. इसका जो mode of transmission रहता है, that is, it's a soil-borne bacteria. It's a सॉयल बॉर्न बैक्टीरिया। तो जनरली जो इंजरीज होती हैं, एक ऐसे मेटल से इंजरी हो जाए आपको, या किसी भी ऐसे पार्टिकल से इंजरी हो जाए जिसके आसपास सॉयल थी, तो उससे ये आपको ट्रांसमिट हो सकता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज जनरली थ्रू इंजरीज। सब बच्चे मिट्टी वगैरह खा लेते हैं, तो क्या ये बैक्टीरिया नहीं जा पाता? नहीं, वहाँ पे थोड़ा अच्छा ये है कि एसिडिटी ऑफ स्टमक उसको न्यूट्रलाइज कर लेती है। तो डायरेक्टली अगर ब्लड के अंदर इंजेक्ट हो जाए तो ज़्यादा टॉक्सिन है ये, ठीक है। सॉयल बॉर्न इंजरीज। अब इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इट इज अबाउट 7 to 10 days। और आपको कोई इंजरी हुई, वो जो इंजरी थी वो किसी लेट से मेटल पार्ट से थी, किसी हार्ड थिंग से इंजरी हो गई, और उस पर ना ये बैक्टीरिया भी था। तो जैसे ही आपको इंजरी हुआ, ये बैक्टीरिया आपके ब्लड में चला गया। 7 से 10वें दिन आपको सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। सिम्टम में सबसे पहले स्टिफनेस ऑफ नेक हो जाता है। ये बैक्टीरिया एक टॉक्सिन बनाता है जिसको बोलते हैं टेटेनोस्पाज्मिन, न्यूरोटेटेनोस्पाज्मिन एक्चुअली, और वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाके अटैक करता है। मेनली वॉलंटरी मसल अंडर अटैक रहती हैं। मसल्स ऑफ जॉज जो थोड़ी छोटी है साइज में, वो सबसे पहले इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगी। तो पेशेंट को ना बोलने में या किसी चीज़ को स्वेलो करने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो लो जॉग डिजीज भी कहते हैं उसको। इट कुड बी फैटल इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड, इट कुड बी फैटल, और इट रिजल्ट इन डेथ अगर ज़्यादा आपका जो लॉग जॉ होना शुरू हो गया। तो इसकी पैथोजेनिसिटी के अंदर व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कस इन इट्स पैथोजेनिसिटी, फर्स्ट यू आर गोइंग टू डिस्कस दैट दिस bacteria release a toxin. It releases tetanospasmin. देखो नाम भी समझ में आ रहा है कि भाई ये स्पाज्म करने वाला है मसल में, और ये टेटनस वाले बैक्टीरिया ने रिलीज किया है। और अगर मैं इसको न्यूरोटेटेनोस्पाज्मिन लिख दूँ तो फिर तो और भी अच्छा हो जाएगा। ये भी समझ में आ जाएगा ये कहाँ पे एक्ट करेगा। तो ये जो टेटेनोस्पाज्मिन है, इट एक्ट्स ऑन NMJ, न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन ऑफ वॉलंटरी मसल्स, ठीक है भाई। अब साइन एंड सिम्टम की बात शुरू कर देते हैं कि जिसको टेटनस का इन्फेक्शन हो गया है, जिसको टेटनस का बैक्टीरिया एंटर कर गया है। वैसे तो ना आपके पास टेटनस का वैक्सीन होता है, और बचपन में आप टेटनस का वैक्सीन लगवा लेते हो। ये आपको कहा जाता है हर एक 6 महीने बाद एंटी टेटनस सीरम लगवाना चाहिए, एक ऐसा टॉक्साइड जो टेटनस के बैक्टीरिया को नहीं ग्रो करने देता। तो मैं तो वो केस पढ़ रहा हूँ कि भाई पेशेंट बहुत ही केयर फ्री था, उसको किसी चीज़ का डर नहीं था, और उसने ना वैक्सीन लिया है और ना ही वो एंटी टेटनस सीरम ले रखा है। तो उसको आने शुरू होंगे वो इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस जो शुरू होगी, ठीक है। तो जब साइन एंड सिम्टम की शुरू करेंगे, इट स्टार्ट विद इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस, ठीक
ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की डिटेल में तो नहीं जाना ना क्या होगा, या ये ना पढ़ चुके हैं आई गेस। और होता ही है, देखो बेटा ये ना आपके पास एक स्केलेटल मसल है और ये वो न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन जो मैसेज लेके आ रही है, और ये एसिटाइल कोलिन वाले रिसेप्टर्स थे अगर तुम्हें याद हो। मैं ना आपने को पढ़ा था यहाँ पे मस्थेनिया ग्रेविस, जिसमें रिसेप्टर जाके डैमेज हो जाते हैं। यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया इनको ब्लॉक कर देता है, एक्चुअली डैमेज ना करके इनको ब्लॉक कर देता है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर अटैक होता है, ये याद रख के चलेंगे भी, ठीक है। तो सिम्टम्स में क्या क्या होगा, रेस्टनेस एंड इरिटेबिलिटी। सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो ना नेक एरिया से आना शुरू होता है। पेशेंट की जो नेक है वो स्टिफ हो जाती है, नेक बिकम स्टिफ, और नेक के स्टिफ होने से एक तो मूवमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका ट्रैकिया वगैरह तो वहीं पर होगा। ब्रीदिंग एंड स्वेलिंग प्रॉब्लम। फिर जो जॉ की मसल्स हैं वो स्पाज्म चली जाती है। स्पाज्म का मतलब होता है आप पेनफुल इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन। तो जो जॉ मसल्स है उनके अंदर स्पाज्म हो गया, इसलिए इसको लॉक जॉ डिजीज भी कहते हैं। न्यूरोटेटनोस्पाज्मिन रिजल्ट इन स्पाज्म इन जॉ मसल, तो उसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं लॉक जॉ डिजीज। देख लो स्पाज्म जिस मसल में होगा वैसी कंडीशन हो जाएगी। फर्ज करो डायफ्राम के अंदर स्पाज्म हो गया तो देयर वुड बी इंस्टेंट डेथ। एनीवेज नेक बिकम स्टिफ, देयर इज ब्रीदिंग एंड स्वेलिंग प्रॉब्लम। देन जो आपकी वॉलंटरी मसल से अफेक्ट हो जाती है, जनरली जॉ की मसल्स अफेक्ट होती है, तो इस डिजीज को क्या बोलते हो आप, लॉक जॉ डिजीज। और पेशेंट को सीवियर पेन रहता है, पेशेंट को सीवियर पेन रहता है। जनरली इसका देखो डायग्नोस्टिक के लिए तो ऐसा कोई स्पेशल टेस्ट नहीं है हमारे पास, हम सीधा ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट में एंटी टेटनस सीरम दिया जाता है, और जो एंटी टेटनस सीरम है वो भी प्रोवाइड करता है आपको पैसिव इम्यूनिटी। तो टेटनस का बैक्टीरिया बिना किसी डैमेज के, बिना किसी हार्म के रहता है होस्ट के अंदर। तो अगर होस्ट को चोट लगती रहती है, तो वो बैक्टीरिया अगर होस्ट के अंदर चला गया तो होस्ट को वो बीमार नहीं करता है, और होस्ट के ब्लड में ऐसी एंटीबॉडी मिल जाती है जो इसको नहीं ग्रो करने देगी। तो हम टेटनस का जो सीरम बनाते हैं वो वैसे ही बनाएंगे, किसी एक एनिमल को इंजेक्ट करेंगे बैक्टीरिया, उसके अंदर इम्यूनिटी कॉज कराएंगे, उसके सीरम से एंटीबॉडी निकाल के फिर हम अपने इन्फेक्टेड पर्सन को देंगे। ठीक है बेटा, डेट वॉज अबाउट टेटनस। फिर एक दो इन्फेक्शन और रह गए हमारे बैक्टीरिया में। आई एम जस्ट टेलिंग यू द कॉजेटिव एजेंट एंड देयर सिम्टम। उनसे जनरली किताबों में ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछने को मिलेंगे, ठीक है। तो कॉलेरा के बारे में बात करें, जो कॉलेरा होता है वो कॉज होता है, उसका कॉजेटिव एजेंट होता है विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है बेटा। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर और वाटर। विद इन फ्यू आवर्स ये अपने इफेक्ट करना शुरू कर देता है। इसके उसमें केस में जो पैथोजेनिसिटी आती है, जो पेशेंट है वो फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल पास करना शुरू कर देता है। लाइक जो फीकल मैटर उसके अंदर खूब सारा पानी पास होना शुरू हो जाता है, और इसको ना हम बोलते हैं लाइक वाइट राइस लाइक स्टूल इज देयर, दे आर वाइट राइस लाइक। तो अगर कहीं पे ये वर्ड यूज हुआ है कभी क्वेश्चन में तो समझ लेना कॉलेरा के बारे में बात कर रहा है। इस डिजीज में बहुत सारा पानी लॉस्ट होता है, तो इस डिजीज को ट्रीट करते हुए ओरल रिहाइड्रेशन सिरप या ORS का यूज जरूर किया जाता है। इट इज ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक प्लस ORS। जो ओरल रिहाइड्रेशन सिरप होता है उसके अंदर फ्रक्टोज होगा, उसके अंदर सुक्रोज होगा, उसके अंदर ग्लूकोज होगा, NaCl2 होगा, KCl होगा और NaCl होगा, और साथ में पानी तो होना ही है। तो ORS में चलो कंपोजिशन पे नहीं जाते हैं। ये हो गया कॉलेरा के बारे में, इससे बाहर नई चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर बच्चे आप पढ़ रहे थे पर्ट्यूसिस के बारे में। व्हाट इज दैट पर्ट्यूसिस? पर्ट्यूसिस इज द अदर नेम ऑफ वूपिंग कफ, वूपिंग कफ। और जो पर्ट्यूसिस है उसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है
वो होता है बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस, और इसके अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। पर्ट्यूसिस ऑफ वुपिंग कफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट मेथड से ये ट्रांसमिट हो जाएगा। इंक्यूबेशन पीरियड इसका भी शॉर्ट होता है। ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यहाँ पर तो अगर मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका ना कॉजेटिव एजेंट भी पूछा जाएगा। फिर एक होता है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग तो देखो हम टाइफाइड में पढ़ रहे हैं, कॉलरा भी एक तरह का फूड पॉइजनिंग है। जो सबसे कॉमन फूड पॉइजनिंग होता है उसको बोलते हैं बोटुलिज्म, और जो बच्चे बोटुलिज्म होता है उसका कॉजेटिव एजेंट होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिन, क्लोस्ट्रीडियम botulinum is the causative agent of botulism. It is commonly known as food poisoning. तो भाई ट्रांसमिशन भी समझ में आता है, इसका जो इफेक्ट है वो विद इन फ्यू आवर्स आना शुरू हो जाता है। तो प्रिवेंशन के लिए हाथ वगैरह अच्छे से धो के खाना खाइए। देन द लास्ट वन इज स्कारलेट फीवर। द लास्ट वन विच आई एम गोइंग टू कवर इन बैक्टीरियल डिजीज इज स्कारलेट फीवर। स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीनस ये बीमारी कॉज करता है। स्कारलेट फीवर को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि स्कारलेट फीवर ना कई जगह आप पढ़ोगे स्कारलेट फीवर का नाम। जब भी हम कुछ डिजीज़ वगैरह का डिस्कशन करते हैं तो स्कारलेट फीवर आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा जो हार्ट डिजीज़ है वहाँ पर भी स्कारलेट फीवर काफ़ी रिलेटेड रहता है इन हार्ट डिजीज़। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीनस इज द कॉमन कॉजेटिव एजेंट। Streptococcus pyrogenus is the common causative agent of scarlet fever. Then इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो ड्रॉपलेट मेथड रहेगा। इसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम आते हैं। स्कारलेट फीवर में इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ वेरी हाई फीवर along with rashes on the skin, rashes on skin। ये दो सिम्टम आप याद रख लेंगे। तो हाई फीवर विद रैशेज ऑन स्किन इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ स्कारलेट फीवर। ठीक है बेटा, तो बच्चे ये हो गई आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। दिस लेक्चर वाज अबाउट द बैक्टीरियल डिजीज़। और स्कारलेट फीवर में ये भी याद रख लेंगे कि आपका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो भी इन्फ्लेम हो जाता है। थ्रोट और लेरेंजियाइटिस एंड फेरेंजियाइटिस इज़ वेरी कॉमन इन स्कारलेट फीवर। फेरेंजियाइटिस and laryngiitis is quite common in scarlet fever। तो जस्ट ऑन ए क्विक रिवीजन हमने कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीज कवर किए हैं। आई लुक टाइट टुडे। वी स्टार्टेड विद टाइफाइड, देन सेकेंड वाज निमोनिया, थर्ड वाज डिसेंट्री, फोर्थ वाज प्लेग, फिफ्थ वाज डिप्थीरिया, sixth was tuberculosis. After tuberculosis we have discussed leprosy, then tetanus, then cholera, then whooping cough, then और कौन सा पढ़ा, botulism and scarlet fever। तो approx 12 has been completed। Remember NCERT में 5 ही दिया तो 5 तो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, okay, sometimes they might ask you about diagnostic test of scarlet fever। कई बार ना मैच द फ्लोइंग में ये नाम आएगा आपके पास, डिक टेस्ट। सो डिक टेस्ट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ स्कारलेट फीवर। जो आपने पढ़ा था ना वो एक अभी पढ़े थे आप, डीपीटी वैक्सीन, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। तो एक ट्रिपलेट वैक्सीन दे दिया जाता है वो, जो जिसका हमने आपको बताया कि भाई कैसे बूस्टर डोज दिया जाता है 1.5 साल की उम्र में। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। दिस इज ऑल फॉर योर बैक्टीरियल डिजीज। प्लीज़ गो थ्रू द बैक्टीरियल डिजीज। आई विल सजेस्ट यू टू मेक ए चार्ट। तो आप क्या चार्ट बनाएंगे, सारे नोट्स बनाने के बाद इट वुड टेक 10 मिनट्स मोर। पहले सेक्शन में बना लेंगे आप डिजीज़ का नाम, दूसरे सेक्शन में बना लेंगे आप उसका कॉजेटिव एजेंट, नेम, पैथोजन, तीसरे सेक्शन में बना लेना उसका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट, जितने आपको पता है वही लिख लेना, और चौथे सेक्शन में अगर आपके पास है तो वैक्सीन वाला बना लेना, किसकी कौन सी वैक्सीन है, और अगर वक्त मिले तो 5 में सिम्टम भी लिख लेना।
तो एक आसान तरीका हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ के एवरीथिंग वुड बी ऑन योर फिंगर टिप। अगेन आई रिपीट, जो एनसीईआरटी के हैं डेट आर वेरी बेसिक, डेट आर द मस्ट disease which you need to remember. So take care student. Tomorrow we will be getting our next lecture on viral disease. Thank you. Class is dismissed.